प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। शून्यकाल। माननीय सदस्य श्री के.सी. वेणुगोपाल जी। Thank you, ma'am, Chairperson, for giving me this opportunity. I rise to draw the urgent attention of this august House a deeply disturbing and shocking incident that occurred on July 25, 2025 at Durg railway station in Chhattisgarh. Madam, on that day, two Catholic nuns, Sister Vandana and Sister Preeti, belonging to the Assisi Church Sisters of Mary Immaculate, a Zero Malabar congregation based in Cherthala, Kerala, were attacked and falsely accused of religious conversion and human trafficking by Bajrang Dal. Sir, Madam, Madam, they belongs to my constituency. This institution belongs to my constituency. Madam, do you know what they have done? They are helping the cancer patients, that to be a terminating patients, and they do maximum palliative care services. They were helping hands a lot of deprived people. And therefore the people of that area like them very much. They have a service all over India. What happened at the railway station? They, along with other three, these two nurses, two nuns, along with other three women, went to railway station for going for Agra. Suddenly, Bajrang Dal people jumped on it and they stopped, they manhandled, and they tried to make slogans and everything. They finally, police came. We thought that police will came and rescue them because last Christmas period, I am also remembering the last Christmas period, our Honorable Prime Minister went to CPCI headquarters and he given a big bhasan and he given full promises to protect minority rights and Christians' rights. In Kerala, Madam, our BJP friends, they used to go to Christmas time with a cake. They used to go to Christmas cake. But now what is happening? Last 5 days, these two innocent nuns are in jail. Without any reason. Without any reason. What a cruelty this is. If the country is a banana republic, without any reason, you are keeping them in the jail. That minorities are there, that are also they are women. Sir, yesterday we sent our MPs Saptagiri Shankar Ulaka, Premachandran, Benny Bahanan, and this Francis George. They went there. I think you have to allow them also. They will tell what experience that happened. There are the Chief Minister of Chhattisgarh. We wrote the Chief Minister of Chhattisgarh. We wrote the Home Minister of India. At least these nurses has to, these nuns has to be released. No action. Chief Minister is repeating the same version. The Chief Minister of Chhattisgarh is repeating the same version of Bajrang Dal. What a shame activity, sir, madam. How can we allow it? Therefore, I think this is a high time to act upon. If the government is not acting, the situation will go out of control, madam, because the situation in Kerala is also burning. Everywhere agitation is happening. All sisters are in public. This is not only a Christian issue. Madam, 1 minute. When in Kerala, these people will attack Muslims. And they will try to make difference between Muslims and Christians. In other parts of Kerala, they will attack Christians. Therefore, at least we need to tell this at least. You are also women, madam. Two nuns, those who are doing services, are in jail without any reason, without committed any crime. How can it be? The government has to intervene. We need a clear-cut answer. Government has to intervene and they have to release immediately. Thank you, madam. Madam Chairman, Sri K.C. Venugopal MP. माननीय सदस्य आप संक्षेप में रखिए इस विषय को, प्लीज. Yeah, I am very shortly speaking, ma'am. Sir, Madam Chairperson, Sri K.C. Venugopal MP ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ
ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ദുർഗ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 2 കന്യാസ്ത്രീമാരെ യാതൊരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്ത, യാതൊരു തരത്തിലും നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കാത്ത 2 കന്യാസ്ത്രീമാരെ നിയമവിരുദ്ധമായി ഛത്തീസ്ഗഡ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച ക്യാൻസർ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുക, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം നടത്തുന്ന കന്യാസ്ത്രീമാരെയാണ് അന്യായമായി ഛത്തീസ്ഗഡ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം ഈ കന്യാസ്ത്രീമാരെ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്യായമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണം. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പും ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് സഭയിൽ പ്രസ്താവന നടത്തണം. മാഡം, ഈ രാജ്യത്ത് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ല, ക്രൈസ്തവർക്ക് രക്ഷയില്ല, കന്യാസ്ത്രീമാർക്ക് ജനസേവനം നടത്താൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നില്ല. പാസ്റ്റർമാർ, മിഷണറിമാർ, വൈദികർ എല്ലായിടത്തും ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂಗಾರು ಋತು ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತ ಖರೀಫ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿಗಳು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಭತ್ತ, ಜೋಳ, ನೆಲಗಡಲೆ, ಸೋಯಾಬೀನ್, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಇಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಜಾಗತಿಕ ದೇಶಗಳ ಕಲಹಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು 8,13,000 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಯೂರಿಯಾ ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾಂಡ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸೊರಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುರಾಡಳಿತವನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅವರ ಒಂದು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇವತ್ತು ಏನು ಆಡಳಿತ ಇದೆ, ದಾಸ್ತಾನು ಇದ್ದಂತ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು DAPಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡದಿರ ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 258 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಯೂರಿಯಾ ಇವತ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೈತರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ DAP ಏನು 1,200 ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ಕೂಡ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಬಳಿ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು DAP ಏನು ದಾಸ್ತಾನುಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. माननीय सदस्य श्री नरेश चंद्र उत्तम जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक गंभीर, संवेदनशील और जन विरोधी निर्णय की ओर खींचना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों को कम छात्र संख्या के आधार पर जोड़ा जा रहा है और बंद किया जा रहा है। बच्चों से शिक्षा छीनी जा रही है। सरकार का एक तरफ शिक्षा को हर बच्चे को मौलिक अधिकार बताती है, दूसरी तरफ गांव के स्कूलों को मर्ज करके बच्चों को 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर भेजने की साजिश की जा रही है। क्या यही नया भारत है जहां शराब के ठेके गांव-गांव खोले जा रहे हैं लेकिन स्कूलों को गांव से हटाया जा रहा है?
शराब की दुकानें पास पास और स्कूल दूर, क्या यही है आपकी प्राथमिकता? आरटीआई एक्ट 2009 साफ करता है कि हर बच्चे के घर को 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए, लेकिन आज उसे तोड़ा जा रहा है। ये मर्जर नीति गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और बेटियों की शिक्षा को सीधा चोट पहुंचाने वाली है। बेटियां कैसे जाएंगी 2-2, 3-3 किलोमीटर? गरीब का बच्चा कैसे छोड़ेगा अपना गांव और अपने गांव कैसे पढ़ने जाएगा? ये नीति ड्रॉप आउट्स को बढ़ाएगी, बाल मजदूरी को जन्म देगी और संविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा के अधिकार को रौंदेगी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि 16 जून 2025 के आदेश को तत्काल वापस किया जाए। नंबर 2, किसी भी परिषदीय विद्यालय को मर्ज या बंद न किया जाए। नंबर 3, विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक और प्रधानाध्यापक की तैनाती हो। नंबर 4, शिक्षकों में गैर शैक्षणिक कार्य न लिया जाए और केवल उनसे पढ़ाने काम किया जाए। सभापति महोदय, आज जब सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उसी बेटी को स्कूल से दूर भेजने की नीति बनाना एक गंभीर विडंबना है। महोदया, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये विषय संसद में गंभीरता से लिया जाए और उसके गांव में हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर बायरेड्डी सबरी जी। Thank you, Speaker ma'am. Today, I would like to draw the attention of the House about the deliberate remarks made by our YSRCP leaders against the modesty and dignity of women leaders belonging to Telugu Desam Party in the state of Andhra Pradesh. As the father of nation, Mahatma Gandhi said, to call a woman as a weak sex is liable. It is man's injustice towards women. We might be very brute in terms of brute strength, we might be less brute. But in terms of moral strength, we are far better than men. Speaker ma'am, today these remarks have been made when the nation talks about 33% reservation, women reservation, when nation no more talks about women development, but women-led development, which is under our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and our Honorable Chief Minister, Chandrababu Naidu Garu. As we can see, the first aims is given by a woman. Our languages which are put into the court has been by a woman, and our constitution is what it is today because of our great women, and so is the judiciary and executive. And the nation is led by a woman, and also every woman in this nation is playing a role in strengthening our democracy. Why do you think women perform better than men? This is because we care. We women are wise, outstanding, marvelous, educated, and we are nation builders. Speaker ma'am, we are not in politics just for the sake of a male chauvinist to speak about our character or judge our character. We are here to build the nation's character. And also, this is our public life should never become a punishment to us. Speaker ma'am, today, these remarks, not just verbal abuse. This verbal abuse, I can tell that it is equally offensive as sexual abuse. Today, I'm not speaking as a women representative, but as a daughter, as a sister, as a wife. I'm speaking here, and who cannot be silenced with their abuse, and who cannot be silenced at all in the future. Speaker ma'am, I would like to request to bring in a resolution, to pass a resolution today, and also bring in a law that would protect the modesty and dignity of women of our country, especially women in our in public services. Today, we are here in politics, ma'am. This is a very important topic, ma'am. And also, let us spread a word that abuse can no longer be tolerated. It cannot be normalized, and also the justice should not be delayed. Thank you, ma'am. We shouldn't take names and check that. Victim name this question. Thank you, Speaker, Madam. Madam, சமீபத்தில் நமது மாண்புமிகு தேச பிரதமர்
அவர்கள் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்திற்கு வந்து சோழாவின் பெருமைகளை உலக அரங்கில் பறைசாற்றுவேன் என்று மிகப்பெரிய வாக்குறுதியை கொடுத்திருக்கின்றார். குறிப்பாக ராஜேந்திர சோழனுடைய பெருமைகளை உலக அளவில் கொண்டு சேர்ப்பேன், அதற்கான எல்லா காரியங்களையும் நான் நிகழ்த்துவேன் என்று ஒரு மிகப்பெரிய வாக்குறுதியை தமிழக மக்களுக்கு, தமிழ் மண்ணுக்கு அளித்திருக்கின்றார். அந்த அடிப்படையில் நான் இன்று இங்கு ஒரு கோரிக்கையோடு வந்திருக்கின்றேன். குறிப்பாக the great Cholas ruled the world and controlled the sea because they had a powerful navy. Their ships carried over 1,000 elephants and they reached far and wide on the east coast. They conquered most of the present-day Southeast Asia nations. The two ports from where they launched their naval expeditions are Pumbugar and Semanar Koil. Both ports are laying within Mayiladuthurai Parliament constituency. The Prime Minister, while lauding the great Cholas and Gangaikonda Cholapuram on July 27th, announced that this government will do everything to propagate the fame of the Cholas. I request the government to announce offshore evacuation of Pumbugar and Chemanar coastal, as they are treasure trove of information on the Chola legacy. Chola's legacy is India's legacy too. If offshore evacuation is done on the scale of Keeladi, India's naval will be known to the world. I request the government to announce a special project, special team and special funds to do offshore evacuation along the coast of Pumbugar and Semanar Koil. Both are the ports of the great Cholas. रमन सिंह जी, माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं आपके माध्यम से इस महती सभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं। आज कैंसर की बीमारी एक महामारी का रूप ले लिया है। ये महामारी आने वाले दिनों में सुनामी का रूप लेने जा रही है, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में बताया गया। उस रिपोर्ट में कहा गया कि कैंसर के कई प्रकार के मामलों में वृद्धि देखी गई है। लगभग सभी आयु वर्ग के मामलों में होठ और ओरल कैविटी, सर्वाइकल कैंसर सहित बच्चों के भी कैंसर के मामले में उछाल दर्ज किया गया है और चिंता जताई गई है कि 2050 तक इस क्षेत्र में नए कैंसर के मामलों में और इसके कारण मौत में 85% की वृद्धि हो सकती है। देश में बदलती जीवन शैली, पर्यावरण का क्षरण और कैंसर के प्रति जागरूकता की कमी के कारण 9 में से 1 पुरुष और 8 में से 1 महिला को कैंसर होने का खतरा है। भारत में प्रतिदिन हजारों लोग इस बीमारी के कारण अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। मैं आपके माध्यम से इस जटिल और गंभीर बीमारी के लिए समझ सतर्कता की आवश्यकता है। इसके प्रकार, कारण, लक्षण और रोकथाम की रणनीतियों के प्रति लोगों को अपने स्वास्थ्य में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है। सभी कैंसर के लोगों को कैंसर के बारे में ज्ञान साझा करना, प्रभावित लोगों को समर्थन करना और ऐसे भविष्य की दिशा में प्रयास करना आवश्यक है। आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख नहीं 25 लाख तक के इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। लखनऊ में जो कैंसर संस्थान है उसको एम्स जैसी सुविधा देनी चाहिए और प्रयागराज में जो कमला नेहरू संस्थान है उसको भी सरकारी मदद देनी। धन्यवाद। सदस्यों से मैं आग्रह करती हूं अपनी बात को 2 मिनट के भीतर रखने की प्रयास करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर केंद्रित करना चाहता हूं। मेरा महाराष्ट्र और खास करके मेरा सांगली जिला, यहाँ के किसान ज्यादातर खेती पर निर्भर हैं। जो अंगूर की खेती है बड़े पैमाने में की जाती है और अंगूर से आगे जाके किशमिश बनता है। ये किशमिश का एक्सपोर्ट होता है और बहुत राज्यों में जाता है, इसलिए किसानों को इसमें ज्यादा अच्छी आमदनी मिलती है। दुर्भाग्य है मैडम कि किशमिश के रेट जो भाव है वो गिर रहे हैं। इसका कारण ये है कि चाइना की किशमिश, चाइना में अंगूर बना के उसमें जो किशमिश तैयार होता है वो किशमिश नेपाल के द्वारा इलीगली
इंडिया में भारत में स्मगल हो रहा है और स्मगल होने के कारण उसके रेट गिर रहे हैं और किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार ने ये इलीगल इंपोर्ट बंद करना चाहिए। पहले किसानों को जो ये एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्टर को कुछ सब्सिडी दी जाती थी, जिस सब्सिडी के कारण यहां डिमांड सप्लाई भी मेंटेन रहता था, किसानों को अच्छी आमदनी मिलती थी। तो सरकार से यह है कि वापस वो सब्सिडी शुरू करे, एक्सपोर्ट के लिए किसानों को कुछ फायदा करवा के दे और इलीगल इंपोर्ट बंद कराए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री धर्मवीर सिंह जी। मैं आपका ध्यान मेरे लोकसभा क्षेत्र के भिवानी व दादरी के अंदर बैठे किसान कुछ समय से धरने पर बैठे हैं। भारत सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला, बहुत अच्छा फैसला, जिसमें फसल बीमा योजना के लिए किसान को जो नुकसान होता था उसकी भरपाई की जाती है। हमारे प्रदेश में बड़ा फायदा मिला, परंतु खरीफ 2023 के दौरान कपास फसल बीमा क्लेम निर्धारण करने में जानबूझकर फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त वास्तविक आंकड़ों को नकारते हुए गैर कानूनी तरीके से तकनीक आधारित उपज अनुमान प्रणाली को अपनाया गया। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने भी रिकमेंड करके भेजा था, लेकिन बाद में निर्णय जब हरियाणा में चुनाव का दौरान था, आचार संहिता लगी हुई थी, तो 20 अगस्त 2024 को स्टेट टेक्निकल एडवाइजर के नाम पर किया गया, जो उसमें अस्तित्व में नहीं थी और उस बैठक को बिना कोरम के आयोजित बताई गई। और इससे हमारे भिवानी और दादरी के अंदर कपास के अंदर लगभग 300 करोड़ रुपया किसानों का स्टेट और सेंटर का जो शेयर था वो छेमा कंपनी की नाम थी, जो कहीं दक्षिण में रजिस्टर्ड हुई थी 2023 में, उस पैसे को लेकर चली गई। मेरा कृषि मंत्री से प्रार्थना है आपके माध्यम से कि वो किसानों का पैसा तुरंत दिलवाया जाए और उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद माननीय सदस्य श्री नीरज मौर्य जी। माननीय सभापति जी, धन्यवाद आपका। आपने लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय पे हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों की दुर्दशा है और सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब माननीय अखिलेश यादव जी थे तो छात्रों को लैपटॉप दिए जा रहे थे और आज मधुशालाएं दी जा रही हैं। मान्यवर, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, आंवला लोकसभा से, आंवला लोकसभा ग्रामीण क्षेत्र की लोकसभा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरी तरफ एक नारा दिया जा रहा है कि सब पढ़ें सब बढ़ें। इसी लोकसभा ने राइट टू एजुकेशन पास किया, इसी लोकसभा ने शिक्षा का अधिकार सबको दिया, लेकिन आज शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार उत्तर प्रदेश के स्कूलों को बंद न करे, बल्कि हमारे क्षेत्र में सरकारी केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय की स्थापना करे, जिससे कि सबको शिक्षा का अधिकार मिले। आपका मैं आभारी हूं, आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कीर्ति आजाद झा जी। धन्यवाद सभापति महोदया। आज हमारे बीच में प्रभारी मंत्री सरकार की तरफ से श्री अश्विनी वैष्णव जी बैठे हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनसे भी ये संबंधित रहेगा। मैं चाहूँगा कि उनका मेरी तरफ कुछ आकर्षण रहे। आज पहले प्रश्न पर एक बहुत अच्छा जवाब दिया था माननीय मंत्री जी ने कि किस प्रकार से साइबर क्राइम के ऊपर वह नियंत्रण कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने काफ़ी लाखों टेलीफोन, काफ़ी सिम कार्ड्स को ब्लॉक किया है। लेकिन क्या इनको ब्लॉक करना हमारा उद्देश्य की पूर्ति करता है? स्पैम कॉल्स 146 करोड़ दशमलव 3 लोगों को हर रोज दर्जनों के हिसाब से मिलता है। इसमें सर्विस प्रोवाइडर्स जो आधार कार्ड से लिंक सिम कार्ड देते हैं, वह अलग अलग कंपनियां, बड़ी कंपनियां जैसे अभिनंदन लोधा है, जैसे पीएनबी मेटलाइफ है, जैसे आईसीआई लोम्बार्ड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है,
इन लोगों को दिए जाते हैं। इन लोगों के नंबर मैंने बार बार दिए हैं और ब्लॉक भी हुए हैं, उसके बावजूद भी नंबर आते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या वह इन बड़ी कंपनियों को बंद करेगी, क्योंकि ये जड़ है। यदि इस जड़ को खत्म किया जाए तो यह कंपनी का आप एक नंबर ब्लॉक करें, दूसरा सिम कार्ड ब्लॉक करें, तीसरा करें, 1000 लेंगे, 2000 लेंगे, 3000 सिम कार्ड लेंगे, इनके पास पैसा है। तो मैं ऐसे में सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सिम कार्ड की जगह यह बड़ी बड़ी कंपनियां, अभिनंदन लोधा, पीएनबी मेटलाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई इंश्योरेंस और ऐसी बड़ी सारी कंपनियां हैं, उनको बंद करेंगी? जस्टिस केएस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में प्राइवेसी आर्टिकल अंडर 21 में मेरी प्राइवेसी है, वो मेरा फंडामेंटल राइट है, इसका उल्लंघन हो रहा है। और मैं यह सरकार से कहना चाहता हूं कि इफ द गवर्नमेंट कैन नॉट स्टॉप इंडस्ट्री बैक डाटा थेफ्ट एंड स्पैम न्यूसेंस, हाउ कैन इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एआई ड्रिवन साइबर फ्रॉड्स आगे के समय के लिए? तो मैं माननीय अश्विनी वैष्णव जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे माननीय मंत्री जी, मैं आशा करता हूँ कि उन्होंने इसकी संज्ञा ली होगी और इसके ऊपर कार्रवाई होगी। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और जो लोग सोर्स हैं उनको बंद करेंगे। सिम कार्ड बंद करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। 1000, 2000, 10,000 तक ये ब्लॉक करते रहिए, नया नया लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर जी। अध्यक्ष महोदय, हाल ही में आई भीषण बाढ़ ने हमारे क्षेत्र के कई गांवों को बुरी तरह प्रभावित किया है। धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों की मेहनत और आजीविका को गहरा आघात पहुंचा है। इसके अलावा दर्जनों मकान पूरी तरह से ढह गए हैं और कई परिवार आज खुले आसमान के नीचे जीवन बिताने को मजबूर हैं। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। न बिजली है, न साफ पीने का पानी, न आने जाने की सुविधा। अतः सरकार से मांग करती हूं कि वह संबंधित विभागों को कहें कि प्रभावित गांव को तत्काल सर्वेक्षण कराया जाए। धान की नष्ट फसलों के लिए किसानों को उचित और जल्दी मुआवजा प्रदान किया जाए। जिनके घर बर्बाद हुए हैं उन्हें पीएम आवास या आपदा राहत फंड के तहत सहायता दी जाए। राहत सामग्री जैसे भोजन, कपड़े, दवा जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। मेरे आपसे अनुरोध है कि आपदा से प्रभावित लोगों को राहत दिलाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हरीश चंद मीना जी। धन्यवाद माननीय सदस्य सभापति महोदय। मैं आपकी इजाज़त से आज इस सदन का ध्यान ऐसी एक महामारी की ओर आकर्षित करना चाहूँगा जो हमारे देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय संपत्ति हमारे युवाओं को नष्ट करने की ओर बढ़ रही है। नशीली दवाओं, नशा पदार्थों का सेवन ये भयावह स्तर पर पहुंच गया है। मैडम, पिछले 5 सालों में भारत में 11,000 करोड़ से अधिक के मादक पदार्थ सीज किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भारत में 2 करोड़ से ज़्यादा हमारे युवा इसके आदी हो चुके हैं। महोदय, ये जो मादक पदार्थ है गाँवों में, शहरों में नहीं, अब हमारे कक्षों में भी पहुँचने लग गए हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में भी जा रहे हैं और इससे युवाओं का ध्यान शिक्षा की ओर नहीं होकर अपराध की ओर, नशे की ओर जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र टोंक सवाई माधोपुर, उसके पास में एक चूरू लोकसभा क्षेत्र है, उसमें ये बीमारी इतनी ज़्यादा हो गई है, सरकार विशेष कार्यबल गठित करे और हमारे युवाओं को, हमारे देश को इस नशे की प्रवृत्ति से बचाए। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी। धन्यवाद मैडम जी। मैं आपका ध्यान, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे क्षेत्र में जलंधर कंटोनमेंट एरिया की कुछ प्रॉब्लम्स जो पब्लिक फेस कर रही है और पब्लिक में जिसकी रिजेंटमेंट है वो सरकार के ध्यान में लगाना चाहता हूँ। एक मुस्लिम ईदगाह कंटोनमेंट एरिया में, मुस्लिम ईदगाह 1909 से मुसलमानों के कब्जे में है, उनको ये दान की गई थी, लेकिन अब
उसका एक नोटिस जारी करके 10 दिन का नोटिस दिया गया है कि इसको खाली करें। दूसरा, वहाँ की जो सिविल लोग रहते हैं कंटोनमेंट एरिया के अंदर, उनको अलॉटेड लैंड है, उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है। तीसरा, एक उसके चारों तरफ पेरीफेरी एक्ट बनना, रोड बनना है, उसकी प्रॉब्लम है। तो मैं आपसे 2 मिनट चाहता हूँ कि ये जो ईदगाह है, ये उनको 1909 से उनके कब्जे है, वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ वो उनको दान की गई थी ये जगह। 1995 में इसकी नोटिफिकेशन सरकार ने जारी की, लेकिन अब क्या आपत्ति है कि वहाँ नोटिस जारी करके उनको खाली कराया जा रहा है। इससे मुस्लिम कम्युनिटी में पूरी रिजेंटमेंट है, मिनोरिटी पे ये हमला है। इसलिए मेरी सरकार से निवेदन है कि इसको उनको वापस दिया जाए और ये नोटिस है जो खारिज किया जाए। दूसरा, जो वहाँ के सिविलियन हैं, उनको जो अलॉटेड लैंड है उसकी रजिस्ट्रेशन जो बंद कर दी है उसको खोला जाए। और बड़ी दिक्कत आ रही है लोगों को। 13 गांव हैं जिनके लिए पंजाब सरकार ने प्रपोजल भेजी है कि कंटोनमेंट एरिया के चारों तरफ एक पेरीफेरी रोड बनाई जाए। वो अगर सरकार सहमत हो जाती है तो इससे कंटोनमेंट एरिया को, फौजियों को भी फायदा है, क्योंकि उनसे अंदर से लोग होकर जाते हैं, फिर वो पेरीफेरी रोड से जाएंगे। हमारे एमएलए प्रगट सिंह जी भी मंत्री जी से मिलकर गए हैं। मेरा आपसे निवेदन है, सरकार से निवेदन है, ये तीनों बड़े संवेदनशील इशू हैं। मिनॉरिटी का इशू, मिनॉरिटी से उनका जो हक है नमाज पढ़ने का, वो छीना जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इसको सिंसियरली कंसीडर किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री लुम्बाराम चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र जालोर सिरोही दोनों जिले डायरेक्ट जोन घोषित है। यहाँ पे पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, खोसला कमेटी की रिपोर्ट 1 सितंबर 1965 के अनुसार गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर कडारा बांध बनाना प्रस्तावित था। उस समय दिनांक 1 अक्टूबर 1966 में राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार के बीच में माही जल बंटवारा समझौते में कांडला बांध का निर्माण हुआ था। समझौते के अनुसार गुजरात के खेड़ा जिले में कडारा बांध का पानी तब तक मिलेगा जब नर्मदा का पानी खेड़ा जिले में नहीं आता है। चूँकि 2005 में नर्मदा का पानी गुजरात खेड़ा के जिले में मिल रहा है, तो सतही समझौतों के अनुसार कडारा बांध और माही बांध के 2/3 राजस्थान के सिरोही जालोर के तय हो चुका है। तो समझौतों के अनुसार जालोर सिरोही को पानी उपलब्ध नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, कांडला बांध का ओवरफ्लो होकर पानी सुखलाम सुजाम नहर के द्वारा पानी समुद्र में जा रहा है। भागवत कमेटी गुड़गांव द्वारा सर्वे किया गया, जिसमें बताया गया है कि 37 साल में 27 बार ओवरफ्लो होकर 1.30 लाख MTC पानी समुद्र में बहकर बर्बाद हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सुखलाम सुजाम नहर को सुदृढ़ कर नर्मदा कैनाल से जोड़कर जिसको जालोर सिरोही को पेयजल और सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जाए, इसके लिए अधिकारी नियुक्त किया जाए। इस हेतु राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार की संयुक्त बैठक आयोजित की जाए। आप इसके लिए जालोर सिरोही की जनता और किसानों के तरफ से मैं आपका तहे दिल से आभार करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य डॉक्टर किरसान नामदेव जी। धन्यवाद महोदय। कैमरा आ जाता हूँ। महोदय, अब ये जून जुलाई में ये फसल लगाने का सीजन होता है और इस समय खाद की किसानों को जरूरत होती है, लेकिन इसी समय जिस समय फसल लगाई जाती है और खाद की जरूरत पड़ती है, उसी समय खाद की किल्लत निर्माण होती है। हमारे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ये खाद निर्माण का एक यूनिट है। वो यूनिट को बताया गया है कि 70% खाद महाराष्ट्र में और 30%
अदर स्टेट्स में दिया जाए, लेकिन ये रेशो मेंटेन होता नहीं, इसलिए हमारे महाराष्ट्र के लोगों को खाद मिलता नहीं। उसी तरह तेलंगाना में रामागुंडम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से लगकर है। कुछ तालुका हमारा एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी उसको पास में आता है, तो उस यूनिट का खाद वो हमारे करीब के एरिया को मिलेगा तो वो बहुत सुविधाजनक होगा और जल्दी मिलेगा। ये खाद का सप्लाई समय पर होना चाहिए और इसके लिए ये जो भी सप्लायर्स कंपनियां हैं इनको ऐसे निर्देश देने चाहिए। ये कंपनियां ये खाद के साथ में लिंकिंग करती है। आपने डीएपी लिया तो डीएपी के साथ नैनो यूरिया लेने के लिए मजबूर करती है, तो ये लिंकिंग बंद की जाए और जो भी सप्लाई अश्योर्ड किया महाराष्ट्र को 15,52,000 मैट्रिक टन का, वो अभी तक हुआ नहीं है, सिर्फ 5,20,000 मैट्रिक टन हुआ है। और डीएपी का जो सप्लाई एश्योर किया गया था 4,60,000 मैट्रिक टन, वो सिर्फ 1,26,000 मैट्रिक टन हुआ है। तो यह सप्लाई सुनिश्चित किया जाए और इस फसल लगाने के समय हमारे किसानों को पैसे की जरूरत पड़ती है। धन्यवाद। लेकिन जो भी रबी का और खरीफ का जो धान किसानों ने बेचा है एमएसपी पर, उसका पैसा अभी तक मिला नहीं हो, पैसा जल्दी से जल्दी दिलाया जाए। थैंक यू। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद सभापति महोदय। पेंच नेशनल पार्क वन में आजीविका प्रतिबंध उत्पन्न संकट जो उत्पन्न हुआ है मेरे संसदीय क्षेत्र में, मैं सरकार का ध्यान रामटेक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पेंच नेशनल पार्क से जुड़ी एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या का ओर दिलाना चाहता हूं। इस क्षेत्र में आदिवासी बहुल क्षेत्र है और वहां की आजीविका ही जंगल के ऊपर निर्भर है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब से पेंच नेशनल पार्क हुआ है वहां पे आदिवासियों को आने जाने से रोका जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है। उनकी किसानी खेती ये जंगल से लगकर है, उसके वजह से हमेशा उन पे टाइगर अटैक होते हैं, उनकी जानें जाती है। और उसके बाद भी सरकार ने अभी तक के पिछले 4 सालों में मैंने आंकड़े निकाला है कि पूरे देश में 700 से ज्यादा लोग मारे गए जा चुके हैं। 2023 तक के आंकड़े उपलब्ध है, 3 साल अभी तक के आंकड़े आए नहीं है। महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और मेरे संसदीय क्षेत्र में पिछले 3 साल में 11 लोगों की मौतें हो चुकी है मैम। उसके बाद भी अभी तक के सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं किया गया है और उनकी उपजीविका ही पूरी जंगल पे है, क्योंकि जंगल को सुरक्षित करने का पूरा काम ही आदिवासी लोग करते हैं और उनको आदिवासियों को पूरा बाहर कर दिया है। कोई भी योजना में बैठता नहीं है उनका, ना तो पशुपालन के लिए कोई कॉरिडोर बनता है, ना उनके उपजीविका लिए कुछ करते हैं, हमेशा वो मौत से जूझते हैं। तो मेरी आपसे विनती रहेगी आपके माध्यम से सरकार से कि उनके लिए कुछ तो भी ऐसा प्रावधान किया जाए कि जिनके वजह से उनकी जानें बच सके और उनको खेती करना और उनको उद्योग करने के लिए कुछ तो भी योजना तैयार की जाए। 11 साल से सरकार चल रही है लेकिन आदिवासी की तरफ ध्यान नहीं है। आपके माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि आदिवासी भी इस देश का नागरिक है, वो जंगली नहीं है, जानवर नहीं है, इंसान है। माननीय सदस्य श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि जी। माननीय सभापति जी, आपने मुझे इस लोक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर सदन में दिया। मैं इसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी लोकसभा क्षेत्र हाथरस में कोरोना के समय 2 महत्वपूर्ण रेल बंद कर दी गई थी। एक बादीकुई से बरेली पैसेंजर और दूसरी देहरादून से सूबेदारगंज लिंक एक्सप्रेसवे। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि उन दोनों रेलों को पुनः चलाने की कृपा करें। साथ ही साथ दिल्ली से अलीगढ़ वाया लखनऊ को सुबह सुबह 2 महत्वपूर्ण रेल स्वर्ण शताब्दी और वंदे भारत अलीगढ़ होकर के गुजरती हैं।
अलीगढ़ में तो इनका स्टॉपेज है, लेकिन हाथरस जंक्शन पर इनका स्टॉपेज नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो बहुत लोगों को हाथरस से लखनऊ जाना पड़ता है जनहित में, उनमें से कम एक रेल को वहां रुकवाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती स्मिता उदय बाग जी। मैं आज इस सदन से मेरे जलगांव लोकसभा क्षेत्र की जनता की ओर रही गंभीर असुविधा की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। पहली गाड़ी संख्या 19,005 सूरत भुसावल एक्सप्रेस जो पूर्व में उधना से रात 11:27 बजे प्रस्थान कर सुबह 8:45 बजे जलगांव पहुंचती थी, अब कोविड-19 के बाद सुबह 7 बजे पहुंच रही है। इस बदलाव से दोंडाईचा और धरमगांव के विद्यार्थियों, सरकारी और निजी कर्मचारियों की अत्यधिक कठिनाई हो रही है। उन्हें रात 3 बजे उठकर यात्रा करनी पड़ती है, जिससे मानसिक तनाव और स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। यदि यह ट्रेन उधना से 1:03 बजे चले तो पुनः 8:45 बजे जलगांव पहुंचना संभव हो सके। दूसरी जो गाड़ी है 11:3 देवलाली भुसावल एक्सप्रेस जो पूर्व में चालीसगांव और पाचोरा में क्रमशः सुबह 7:40 और 8:30 बजे पहुंचती थी, अब इसमें 2 घंटे की देरी हो रही है। इस बदलाव से लगभग 5,000 दैनिक यात्री, कर्मचारी, छात्र, व्यापारी, मरीज, किसान प्रभावित हो रहे हैं। वे अब मजबूरन निजी वाहन या असुरक्षित साधनों से यात्रा कर रहे हैं, जिससे आर्थिक और सामाजिक जोखिम बढ़ रही है। अतः मांग है कि उपरोक्त दोनों गाड़ियां समय सारिणी पूर्वक बहाल की जाए, ताकि मेरे क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके और उनकी कार्यक्षमता और जीवन स्तर पर प्रभावित न हो। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्रीमती सांभवी जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मेरे लोकसभा के लिए इतने अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान अपने लोकसभा समस्तीपुर लोकसभा की तरफ लेकर जाना चाहूँगी। समस्तीपुर लोकसभा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है, जो सामाजिक न्याय के साथ साथ शिक्षा और एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए भी बहुत मजबूती से अपनी आवाज़ उठाते थे और उसके लिए वो काम करते थे। मेरे समस्तीपुर लोकसभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, जो कृषि के क्षेत्र में रिसर्च और एकेडमिक के माध्यम से देश भर में अपना एक नाम स्थापित करने का काम कर दिया है। पर वहीं पे जहाँ पे कृषि के क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे हमारी युवा साथी अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं या कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वैसे इंस्टीट्यूट्स मेरे लोकसभा में नहीं हैं। आज आपके माध्यम से हम सरकार से ये मांग करते हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या फिर आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स समस्तीपुर लोकसभा में खुले, ताकि मिथिला के जो युवा साथी हैं उनको भी शिक्षा में एक सामान्य अधिकार मिले, जो उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है। एक ब्रेन ड्रेन की समस्या मेरे लोकसभा में हो जाती है, क्योंकि अगर उनको कानून की पढ़ाई करनी है या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है तो उनको दिल्ली या पटना या बॉम्बे जैसे शहरों में जा करके करनी पड़ती है। तो ये समस्या का हल हो सकता है। इसीलिए हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार आईआईटी या एनएलयू जैसे इंस्टीट्यूट्स को समस्तीपुर में खोलने का काम करे और युवाओं को भी सामान्य अवसर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगणों, पिछले काफ़ी दिनों से शून्यकाल नहीं हुआ था। मेरे पास शून्यकाल की काफ़ी लंबी लिस्ट है। मैं आज उन सभी लिस्टों में से बारी बारी से नाम पुकार रही हूँ। कृपया केवल अपनी बात 1-1 मिनट में रखें। माननीय सदस्य श्री गुरजीत सिंह जी। नेक्स्ट। माननीय सदस्य श्री महेश कश्यप जी। सभापति महोदय, मुझे आपने समय दिया। अभी अभी हमारे विपक्ष के नेताओं के द्वारा बस्तर के विषय में बात रखा गया। मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, बस्तर जल जंगल जमीन से भरा बस्तर को 60 साल तक काला पानी सजा के बना के रखा। वहाँ माओवाद दिया, गरीबी दिया, अशिक्षा दिया। उसी का फायदा उठा करके आज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य के आड़ में अलग अलग गतिविधियां चलाया जा रहा है। और जो हमारे जनजाति बहनें जो अबुझमाड़ महामहिम राष्ट्रपति महोदय के दत्तक पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, उस क्षेत्र में जो कि कोई भी असामान्य आदमी घुस नहीं सकता, वहाँ के बेटियों को अलग अलग राज्य में ले जाके धर्मांतरण जैसा जाल में फंसाना, उनको शारीरिक शोषण कराना, तस्करी करना, ये उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। उनको पता होना चाहिए। बस्तर में आइए, बस्तर के आदिवासी बेटी बहनों के साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है और कई बार उनको गलत नाम से शादी करके उनके साथ धर्मांतरण जैसा जाल में फंसाया जा रहा है और ऐसे सैकड़ों मामले हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं
एक तो ऐसे क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए, हमारे जनजाति बेटी बहनों को रक्षा करने के लिए स्पेशल कानून बने और ये लोग कम से कम उन लोग को संरक्षण न दे, ऐसा मैं आप लोग आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी। Thank you, Madam, for allowing me to speak today. On behalf of the people of Wayanad, whom I represent in this House, I would like to inform the House that it has been 1 year since a terrible natural disaster struck them. Madam, hundreds of people lost their lives. 17 whole families were wiped out. More than 1,600 buildings, including homes, shops, businesses, were destroyed in the landslide and the floods that followed. Madam, hundreds of acres of land were also destroyed and of crop was destroyed. There are coffee plantations there, tea plantations. Most people's livelihoods depend on that, on cardamom, tea, coffee. There are people whose entire lives were destroyed, including auto drivers, jeep drivers, people who run homestays and do small businesses. It has been 1 year now, and I'm sorry to say that they have not been able to be rehabilitated properly. The main reason for this is the lack of support and funding from the center. Ma'am, for 1 year we have been requesting. I personally brought it up in the House many times. We went and met the Home Minister. We have been requesting for funds to be released for Wayanad. So some funds were released, but they were not enough. And they were given as a loan. This is unprecedented, ma'am. For people who have lost their entire lives, their entire livelihoods, they have no finances left. And we are expecting them to repay what the government owes to them to rebuild their lives. National disaster. Ma'am, we wanted it to be declared as a national disaster. That was not done. After much imploring, it was finally designated as a disaster of a severe nature. But none of this is enough, and proof of this is that those victims, their families are still struggling 1 year later. Ma'am, I would like to read to you a judgment by the Honorable High Court, in which Honorable Justice A.K. Jayashankaran Nambiar and Justice P.M. Manoj in the High Court of Kerala, ma'am, have observed that the center has the power to waive these loans. It cannot take the position that it lacks the power to waive these loans. Ma'am, it is my earnest request, it is my heartfelt and earnest request on behalf of the people of Wayanad that the central government consider waiving these loans, which are small amount for the center. Ma'am, only 90 crores it would accumulate to only 90 crores of personal loans and agricultural cooperative bank loans to 36 crores, ma'am. It's nothing for the center. It is my honest request on behalf of all those people who have suffered that the government consider this as a humanitarian. माननीय सदस्य श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं पिछले 10 साल से या उसके ऊपर से लगातार एक बातें कह रहा हूं सर, कि हमारा जो इलाका है संथाल परगना, इस सदन में सभी लोग शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं। आदिवासी की संख्या हमारे संथाल परगना में 45% था 1951 की जनगणना के अनुसार। आज आदिवासी की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार केवल और केवल 27% है, और अभी जो जनगणना स्टार्ट होगी उसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 21 या 22% होगा। आदिवासी विलुप्त हो रहे हैं, और उस आदिवासी को विलुप्त करने में वहां की जो राज्य सरकार है वो आधार का सहारा ले रही है, जो आधार सिटीजनशिप का मामला नहीं है, आधार रेसिडेंट का प्रूफ देती है। उसके आधार पर बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां आ रहे हैं
हमारी लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं, जल जंगल जमीन पर वो कब्जा कर रहे हैं। और इस कारण से एक दिन ऐसा आएगा, अभी जनगणना हो रही है, 2008 की जनगणना हमारे यहाँ नहीं हुई सर, झारखंड में 2008 की जनगणना इसलिए नहीं हुई कि आदिवासी की संख्या घटने के कारण 1 लोकसभा की सीट और 6 विधानसभा की सीट आदिवासी की समाप्त हो रही थी। और अभी जब जनगणना होगी फिर मुझे लगता है कि झारखंड में फिर से परिसीमन नहीं होगा, क्योंकि इस बार 2 लोकसभा की आदिवासियों की सीट और कम से कम 12 विधानसभा की सीट घटेगी। और ये सभी को, पूरे देश के लिए एक समस्या है कि आदिवासियों की संख्या घटकर बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, जो हमारे बहू बेटियों का इज्जत लूट रहे हैं। इसीलिए आपके माध्यम से मेरा आग्रह है भारत सरकार से कि वहां एनआरसी लागू करिए और कोर्ट का जजमेंट यही कहता है, और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाइए, नेस्तनाबूद करिए और हमारे झारखंड और संथाल परगना को बचाइए। माननीय सदस्य श्री धर्मेंद्र यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, मैं अपनी पार्टी के माननीय सदस्य नरेश उत्तम जी और माननीय सदस्य नीरज मौर्य जी की बात से अपने को जोड़ते हुए ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि जिस समाज को कमज़ोर करना उसको शिक्षा से वंचित कर दो। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूरों, किसानों, बुनकरों, छोटे छोटे गरीबों के परिवारों को मुख्य धारा से दूर करने के लिए शिक्षा से वंचित करते हुए जा रहे हैं। सभापति जी, आज़ादी के जहां हम अमृतकाल मना रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग तरह का सामंतवाद है, जहां हम लोग शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत हमको ये कानूनी बाध्यता है कि हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी विडंबना है, 1,26,012 स्कूल बंद कर दिए गए, 5,000 स्कूल मर्जर कर दिए गए, 2 लाख से ज़्यादा वहाँ पे शिक्षकों की भर्ती रोक रखी है। जहाँ शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं गरीब लोग, पीड़ित परिवार के लोग, दलितों के लोग, वहीं 27,000 से ज़्यादा दारू की दुकानें उन इलाकों में खोल दी गई। सभापति जी, सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से, चूंकि इस बजट में केंद्र सरकार का भी पैसा है, इसलिए केंद्र सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। या तो ये हो सकता है कि केंद्र के बनाए हुए कानून में उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मानने हैं, वहां पे आपस में इंजन टकरा रहे हैं, लेकिन टकरा रहे तो टकराते रहें, लेकिन उत्तर प्रदेश से गरीब, किसान, पिछड़े, आदिवासियों, दलितों के जो बच्चों की शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश का जनमानस स्वीकार नहीं करेगा। एक मिनट सभापति खत्म करें। इसीलिए हमारे नेता आरडी अखिलेश यादव जी, जिनको पूरा देश पीढ़ी के नायक के तौर पे जानता है, उन्होंने घोषणा कर दी है, अगर सरकार स्कूल बंद करेगी तो हम पीढ़ी पाठशाला चलाकर उत्तर प्रदेश के गरीबों को शिक्षा देने का काम करेंगे और हम लोग आंदोलन के रास्ते पर जाएंगे, लेकिन स्कूल बंद नहीं होने देंगे। ये मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मणिकम टैगोर जी। Ma'am, I rise today not as a member of this house, but as a colleague of those thousands of families in Delhi who have been rendered homeless overnight. Let us be clear, there was not just structures of brick and tin. They were demolished, and these homes filled with memories and livelihoods and children's dreams. Today, those children who have books in their hands have instead been holding bricks, standing in the rubble of what once was their shelter. Speaker ma'am, the law is not optional. The Delhi Slum Rehabilitation Policy of 2015 and the DUSIB Act of 2010 and the Delhi High Court's judgment in Ajay Maken versus Union of India all clearly states no eviction without rehabilitation, no demolition without dignity. Yet, bulldozers moved in with no notices. Families were thrown out with no alternative housing. Even where court stays exist, like Jallianwala Bagh and Madrasi camps, homes were still destroyed in open violations of judicial orders. No water, no power, no shelter, just silencing and suffering. And amidst this silence, Speaker ma'am, one voice did rise. The leader of opposition, Rahul Gandhi, in this house,
he visited the demolition sites. He walked through the broken lanes and met mothers sitting in the drain with infants in their arms and listened truly to their pain. He came with compassion and clarity, and he asked the one question we must all ask today. If we can send bulldozers so quickly, why can't we send help with the same urgency, ma'am? Before elections, the ruling party friends spent nights in the same bastis. They made promises, jahan juggi, wahan makan. But now, after the elections, it has become jahan juggi, wahan bulldozer. This is not governance. This is abandonment, madam. It is time for this House to take notice, because how we treat the poorest amongst us is not the side issue, but it is the very soul of this democracy. माननीय Thank you, सदस्य ma'am. श्री इंदिरा हंग सुब्बा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं सिक्किम के संदर्भ में एक ऐसा मुद्दा को यहाँ रखने जा रहा हूँ सभापति महोदय कि जो 2 दशक से अविलंबित है। लिम्बू और तामांग ऐसे 2 कम्युनिटीज़ जिसको 2003 साल में शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड किया गया, लेकिन 2 दशक के बाद आज भी इनका सीट रिजर्वेशन सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं हुआ है। 371 F के अंतर्गत सिक्किम के लिम्बू और तामांग कम्युनिटीज़ का सीट रिजर्वेशन किया जा सकता है, और शेड्यूल ट्राइब होने के नाते आर्टिकल 332 भी मैंडेट करता है कि शेड्यूल ट्राइब को सीट रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। सभापति महोदय, इस 18th लोकसभा के शुरू से ही गोवा के संदर्भ में शेड्यूल ट्राइब को सीट रिजर्वेशन देने के लिए रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन द असेंबली ऑफ गोवा, इसको ऑलरेडी हाउस में रखा गया है और इसको पास करना अभी जो बाकी है। लेकिन सिक्किम के शेड्यूल ट्राइब जो लिम्बू और तामांग है, इनको भी शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में 2003 में ही इंक्लूड किया गया था, लेकिन आज तक रीएडजस्टमेंट का कोई बात नहीं हुआ। सभापति महोदय, हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार से कि 371 F और 332 आर्टिकल के अंतर्गत भूटिया लेप्चा के सीट, संघ के सीट और शेड्यूल कास्ट के सीट को पुनः सुरक्षित रखते हुए लिम्बू और तामांग के लिए भी सीट रिजर्वेशन किया जाए, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को अमेंडमेंट करके लिम्बू और तामांग शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट रिजर्वेशन का धन्यवाद माननीय सदस्य। सीट रिजर्वेशन किया जाए, ताकि जो डिलिमिटेशन अब होने वाला है, इस डिलिमिटेशन में एटलीस्ट लिम्बू और तामांग को सीट दिया जा सके, क्योंकि ऑलरेडी 5 इलेक्शंस हुए हैं सभापति महोदय कि लिम्बू और तामांग कम्युनिटीज़ बिना कोई सीट रिजर्वेशन के इलेक्शंस लड़े हैं और आज तक भी उनके कोई सीट रिजर्वेशन नहीं है। तो हम आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन करते हैं कि लिम्बू और तामांग के ये अविलंबित बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग इश्यू को रिजॉल्व किया जाए और सीट रिजर्वेशन किया जाए। थैंक यू मैडम। माननीय सदस्य श्री गुरजीत सिंह जी। थैंक यू चेयरमैन। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। सर्व साझीवालता का प्रतीक हरमंदिर साहिब, गोल्डन टेम्पल, दरबार साहिब जैसा जहाँ मनुष्यता का उपदेश मिलता है, पूरे संसद के लोग भी वहाँ जाते हैं और सबके भले की अरदास होती है। मैडम, वहाँ ऐसी पवित्र जगह को कुछ नापाक इरादे वाले लोग, आतंकवादी सोच के लोग, जिनका कोई धर्म कोई वर्ग नहीं होता, वो लगातार 14 जुलाई से वहाँ धमकी भरे ईमेल भेज रहे हैं। और हरमंदिर साहिब, कोई जो आदमी उसको जानता है, गुरु ग्रंथ साहब जी के पवित्र बाणी को, कोई आदमी भी ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन ये आतंकी लोगों को ऐसी पवित्र जगह के ऊपर लगातार ईमेल भेज रहे हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी चिंतित है, सारे लोग चिंतित है, लेकिन अभी तक एक भी आदमी ढूंढा नहीं गया। कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब अभी जवाब दे रहे थे कि हमने बहुत विकसित कर लिया है। मेरा ये पूछना है कि 14 जुलाई से आज तक 15 दिन हो गए हैं, अभी तक उस जगह तक हम पहुंच नहीं पाए। मेरी सरकार से दरख्वास्त है, ऐसी पवित्र जगह को, जब अमृतसर पे अटैक भी हुआ, जब ये वार चल रही थी मैम, ये बड़ी महत्वपूर्ण मैं बात कहना चाहता हूं। और
वहाँ पाकिस्तान ने नापाक इरादों से हमले भी किए अमृतसर के ऊपर, पूरे देश के ऊपर किए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसी मानवता वाली जगह को नो वार भी घोषित करना चाहिए। सरकार को ये मुद्दा इंटरनेशनल उठाना चाहिए और ये जो नापाक इरादे वाले लोग हैं इनको सरकार जल्दी से जल्दी पकड़कर सलाखों के पीछे फेंके। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अनुराग ठाकुर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। कल ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान एक नेता ने छोटी मुंह ओछी बात कर दी, 50% दम दिखाने की बात कही। मैं तो यही कहूँगा, अगर 1971 की बात को लिया जाए तो बलिदान तो भारत की सेना ने दिया था, लेकिन आयरन लेडी किसी और को घोषित कर दिया। और ये देखिए, जो जंग मैदान में जीती थी वो मेज पर जाकर हार दी। और यही नहीं, अगर इतिहास को थोड़ा खरोचेंगे तो झूठ का मुलम्मा उतरना शुरू हो जाएगा। और मैं उतारना चाहता हूं, थोड़ा सा आपके सामने एक विषय रखना चाहता हूं। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आज के हमारा जो एक महान स्वाभिमानी देश भारत की प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को जो चिट्ठी लिखी, वो एक ऐसा लगता है कि उनके सामने एक याचक गिड़गिड़ा रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने एक याचक गिड़गिड़ा रहा था। इस चिट्ठी से वो पता चलता है। वो देश तय कर ले कि उस समय की सरकार आयरन थी कि आयरनी थी, आयरन थी कि इलास्टिक था, ये आप तय कर लें। और मैं उसका कुछ पढ़ के बताना चाहता हूँ। 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के पश्चिमी मोर्चों पर जो हमले किए गए, उसके 2 दिन बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चिट्ठी लिखी। और ये चिट्ठी ने एक तरह से गिड़गिड़ाने का काम किया। आप देखिए, वो लिखती हैं, राष्ट्रपति निक्सन को लिखे पत्र में इंदिरा गांधी ने कहा, सरकार और भारत की जनता आपसे आग्रह करती है कि आप पाकिस्तान को उस अनियंत्रित आक्रामकता और सैन्य दुस्साहस की नीति से बाज आने के लिए राजी करें जिस पर वह दुर्भाग्य से चल पड़ा है। आगे लिखती है, क्या मैं महामहिम से अनुरोध कर सकती हूं कि आप पाकिस्तान पर अपने प्रभाव का प्रयोग करें और भारत के विरुद्ध उनकी आक्रामक गतिविधियों को रोक सकें। ये उस समय की सेना पर क्या इंदिरा जी को विश्वास नहीं था या अपनी सरकार पर विश्वास नहीं था जो अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे हाथ फैलाकर और गिड़ा करने का काम कर रही थी। माननीय सभापति जी, अगर आप ये देखेंगी तो लिखा है बड़ा स्पष्ट, I regret to inform your excellency that around 17:30 hours on the 3rd of December, Pakistan launched a massive air and ground attack on our country all along the western border. Their aircraft bombed Srinagar, Amritsar, Pathankot, Utrali, Ambala, Agra, Jodhpur and Avantipur. There has been heavy shelling on the borders, cities and townships of Ambala, Firozpur, Sulavanki, Khemkaran, Poonch, Medipur and Jaisalmer. Sir, Madam आगे लिखती है, it is also significant that within the minutes of launching of the attack, the Pakistani publicity media launched a malicious propaganda offensive accusing India of having attacked Western Pakistan earlier in the afternoon. Madam, सवाल ये खड़ा होता है कि अगर उस समय मैं कोई छिपा नहीं रहा, मैं आपके सामने तथ्य को ला रहा हूं जो उस समय की सरकार ने चिट्ठी लिखी। मैडम, सवाल ये खड़ा होता है, मुझे चिट्ठी पढ़ने का पूरा अवसर दिया जाए। मैडम, चिट्ठी पढ़ने का पूरा अवसर दिया जाए। इन दिस आवर ऑफ डेंजर द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ इंडिया सीक योर अंडरस्टैंडिंग एंड अर्ज यू टू परसुएड पाकिस्तान टू डिजिस्ट फॉरथविथ from the policy of wanton aggression and military adventurism which it has unfortunately embarked upon. May I request your excellency to exercise your undoubtful influence with the government of Pakistan to stop their aggressive activities against India. मैडम, ये कौन गिड़गिड़ा रहा था, कौन गुहार लगा रहा था, कौन मदद मांग रहा था? और मैं पूछना चाहता हूँ, उस समय दम दिखाया या भारत को बेदम करके दिखाया आपने? इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका के सामने दीनहीन भाषा में ये पत्र क्यों लिखा
और मैं पूछना चाहता हूं, अमेरिका के पास युद्ध रुकवाने के लिए आप क्यों गए थे? क्या आपको अपनी सेना पर विश्वास नहीं था? आपने कहा कि पाकिस्तान मैलेशियस प्रोपेगेंडा करता है। आज वही प्रोपेगेंडा आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। दरअसल ये परिवार और पार्टी दंडवत और झुकने में माहिर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हैं 50%, अरे 50% जीरो का भी जीरो ही होता है। आप में जीरो दम था, हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है और हमारी सेना ने भी पाकिस्तान को उचित जवाब देकर दिखाया है। माननीय सदस्य श्री श्रेयस पटेल जी। श्रेयस पटेल जी, उस पर टिक कर लीजिए। Thank you, Honorable Speaker, Madam. I rise with the deep concern to highlight two grave issues affecting maize and coconut farmers in my constituency, Hassan, Karnataka. Firstly, maize, our primary crop, has been severely affected by fast-spreading fungal disease called downy mildew disease. Out of 45,000 hectares sown in this season, over 12,000 hectares are already affected. The disease is both soil and airborne, Madam. Making is highly contagious. Despite local awareness efforts, farmers are unable to contain the spread. I urge the Union government to implement the observation given by the special team from ICAR, who surveyed the issues and approved compensation for affected farmers to prevent deep economic distress, Madam. Secondly, Madam, coconut farmers in Hassan, Karnataka, secondly largest coconut producing district is my district, are facing severe challenges. Cultivation over 1.18 lakhs hectares, mainly in Harsikere and Chandrapatna Taluk, is hit by large-scale pest and disease infestation as per CPCRI data, Madam. 82,000 plus affected by rugose whitefly disease, 15,000 plus hectares by stem bleeding, 10,000 hectares plus by black-headed caterpillar disease, Madam. I humbly request the Ministry of Agriculture to extend CPCRI demonstration program and upgrade biocontrol labs in Arsikera and Hoya Narsipura and announce a special support package through Coconut Development Board, Madam. Thank you so much, Madam. माननीय सदस्य डॉक्टर संजय जायसवाल जी। सभापति महोदया, मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है कि माननीय रेल मंत्री जी भी यहाँ मौजूद हैं। सभापति महोदया, रेलवे अधिनियम धारा 70 जो है वह भेदभाव रहित सेवा का नियम करता है। बिहार में चंपारण सबसे बड़ा जिला है और चंपारण में चनपटिया नगर एकमात्र नगर रेलवे स्टेशन है जहाँ पर सभी प्रमुख ट्रेनें नहीं रुकती हैं, जबकि वहाँ पंचायत में भी चंपारण में एक ऐसा स्टेशन है जहाँ ट्रेन रुकती है। तो मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि चंपारण में, बेतिया में जहाँ SEZ, पूरे बिहार में 2 SEZ लिए गए हैं, उसमें चनपटिया लिया गया है और बक्सर है। हमारे चनपटिया का जो स्टार्टअप जोन है उसके लिए डीएम को पूरे देश के चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीएम से कराया कि कैसे आप स्टार्टअप जोन इतना सक्सेसफुल कर लिए। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि चनपटिया में सप्त क्रांति एक्सप्रेस, अवध एक्सप्रेस, पूर्वांचल, अमरनाथ, राप्ती गंगा, पोरबंदर, यहाँ तक कि चंपारण सत्याग्रह भी नहीं रुकती है, जबकि राजकुमार शुक्ला जी की धरती चंपारण है जो महात्मा गांधी को लेकर के चनपटिया लेकर के गए थे। तो राजकुमार शुक्ला जी की धरती पर भी चंपारण सत्याग्रह नहीं रुकती है। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि चनपटिया में इन ट्रेनों का जरूर स्टॉपेज दें। यह एकमात्र नगर है जहां ये ट्रेन नहीं रुकती है। माननीय सदस्य श्री डीन कुरियाकोस जी। सर, मैं सोचा स्कोर भी डीन कुरियाकोस। Thank you, Madam. Madam, the National Highway 85 is passing through my constituency from Kochi to Munnar. Madam, the last week, July 11th, Honorable High Court given a judgment. It is against the National Highway development which was going on there. They banned the widening works which have been taken place there. Madam, the issue is the Forest Department unwantedly intervened in this case. They have no claim in this land. In this particular stretch, Nerimangalam to Valra area, the entire land, the ownership completely vested upon Revenue Department as well as PWD. But indirectly, Forest Department, they helped a private man to go to court
and the Honorable Court intervened and stopped the complete works. My request here, I urge upon this government to seek the intervention of Kerala government to change the affidavit filed by Chief Secretary of Kerala. It was a false affidavit. Due to that affidavit only, the High Court verdict came out against the National Highway Development. I seek the intervention of Government of India to change the affidavit filed by Kerala government. And also, Madam, NHAI advocates, that means the Standing Council of NHAI, they are not at all appearing the courts. They are attending the court procedure in time. That's why I am seeking the intervention of Honorable Minister Nitin Gadkari ji also. Thank you, sir. धन्यवाद मैडम, आपने मुझे अपने लोकसभा से संबंधित यातायात के मामलों पर बोलने का मौका दिया। मैडम, मैं सबसे पहले एक अच्छे काम के लिए सरकार को और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब को धन्यवाद दूंगा कि मैंने इसी सदन में और उनके ऑफिस में जाकर अपने यहाँ बलिया मऊ के लिए 4 लेन की मांग की थी। उन्होंने तत्काल आदेश कर दिया, अधिकारियों के साथ मेरी बैठक भी करवा दी और इंस्पेक्शन भी करवा दिया और रोड का DPR बन गया है। हालांकि अब कोई और क्रेडिट लेने आ रहा है, क्रेडिट तो लोकसभा की जनता को जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि लोग क्रेडिट कोई ले, उस सड़क को तत्काल शुरू करा दे क्योंकि लगातार दुर्घटना हो रही है। दूसरा मामला मैडम वाराणसी से गोरखपुर का है और हमें पत्र भी दिया गया, मैंने माननीय मंत्री जी से जांच करवाया था। जांच में पाया गया कि ठेकेदार पैसा लेकर भाग गया है, एक्स्ट्रा पैसा दिया गया। मुझे लिखित रूप से मंत्री जी के यहाँ से पत्र आया कि 30 मई तक कार्य पूर्ण हो जाएगा, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। रोज दुर्घटना हो रही है। वहाँ सियरही, 1 मिनट मैडम, सियरही दोहरी घाट पर जो अंडरपास है पानी लग गया है, 10 किलोमीटर तक लोग प्रभावित हो रहे हैं। सरोज के सामने जो पुल बना है पूरा नहीं हुआ, वहाँ जाने कितने लोग मर गए। वो अगर यातायात नहीं होगा तो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी। और मैं एक चीज़ और आखिरी बात बोलकर, दोनों रेल मंत्री जी लोग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने सदन में वादा किया था और इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। रेल मंत्री जी, आपसे बहुत उम्मीदें हैं हमारे लोगों की। आपने वादा किया था, 1 साल हो गया, मैं पूरा भरोसा है कि जो आपने यहाँ वादा किया था वादा को पूरा करेंगे और हमारे घोसी लोकसभा को। माननीय सदस्य राजू बिष्टा जी। धन्यवाद मैडम, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैडम, दार्जिलिंग भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, लेकिन दार्जिलिंग तक जाने वाली सारी सड़कें जो है ट्रैफिक के कारण समस्या से ग्रस्त रहती है। और दार्जिलिंग को जो जोड़ता है मुख्य NH 55 सड़क जो ब्रिटिश काल में बना था और आज बहुत अधिक ट्रैफिक के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। रोजाना NH 55 में लगभग 15,000 से ज़्यादा वाहन चलते हैं, जो उसकी क्षमता से लगभग दोगुनी है। और इसके कारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, ऑफिस में जाने वाले हमारे कर्मचारी और टूरिस्ट सीजन में खास करके जो है लोग फंसे रहते हैं, घंटों उनको सड़क में बिताना पड़ता है। इसलिए सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक जोड़ने के लिए एक अल्टरनेटिव हाईवे की मांग मैं यहाँ रखता हूँ। और ये जो है सड़क सिलीगुड़ी से जो दार्जिलिंग को जोड़ेगी वो बालासन होते हुए इसका वैकल्पिक मार्ग बन सकता है, जिसके कारण करसंग, मिरिक, सोनादा, रंगबोल, धोत्रे, सुखिया पोखरी और पोखरबिंग वैली जैसे ग्रामीण क्षेत्र को नेटवर्क, मैडम पूरा बोलने दीजिए नहीं तो हाईवे आधा ही बन पाएगा, नेटवर्क को जोड़ा जा सकेगा। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और गडकरी जी का भी आभारी हूं कि तीस्ता से जो है दवाई पानी होते हुए लेबुंग जाने तक के लिए उन्होंने DPR की मंजूरी भी दी है। क्योंकि मेरा क्षेत्र पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, हर जगह सड़क शायद कामयाब नहीं होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे रोपवे कॉरिडोर बनाने की भी मांग रखता हूँ। घूम से दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से बिजनबाड़ी और डेलो से कालिंपोंग और रेली से चित्रे। धन्यवाद माननीय सदस्य, 1.5 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया। माननीय सदस्य श्री सच्चिदानंदन नंथम जी। மாண்புமிகு அவைத்தலைவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி பகுதியில் உள்ள மலைகளில் மாலிப்டினம் சுரங்கம் அமைக்க ஒன்றிய அரசு திட்டமிட்டிருப்பதாக தெரிய வருகிறது. திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 400 சதுர கிலோமீட்டர் சுமார் 1,00,000 ஏக்கர் பரப்பளவில் மாலிப்டினம் எனும் அரிய வகை தனிமம் இருப்பதாக GSI அறிக்கை கூறுகிறது. நெய்க்காரப்பட்டி, கரடிக்கூட்டம், சத்திரப்பட்டி ஆகிய வருவாய் கிராமங்களிலும் அதையொட்டி இருக்கக்கூடிய மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவார பகுதிகளிலும் இடும்பன்மலை, ஐவர்மலை, இரவிமங்கலம் ஆகிய ஆன்மீக, இதிகாச, தொல்லியல் பகுதிகளையும் குறிவைத்து
இந்த ஆய்வு நடத்தப்படுகிறது. இப்பகுதியில் மாலிப்டன் சுரங்கம் அமைக்கப்பட்டால் ஆன்மீக தலங்கள் அழிக்கப்படும், இதிகாச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஐவர் மலை தகர்க்கப்படும், தொல்லியல் சின்னங்கள் தவிடுபொடியாக்கப்படும், வளம் கொழிக்கும் விவசாய பூமி தரிசு நிலமாக மாறும் ஆபத்து உள்ளது. தமிழர்களின் பண்டைய நாகரிகத்தை பற்றிய முக்கியமான தகவல்களை கொண்ட கீழடி அகழாய்வு அறிக்கையை ஒன்றிய அரசு திருத்த முயற்சிக்கிறது. மதுரை அரிட்டாப்பட்டியில் டங்ஸ்டன் சுரங்கம் அமைக்க முற்பட்டது போல் பழனியிலும் மாலிப்டனும் சுரங்கம் அமைக்க ஒன்றிய அரசு முயற்சித்து வருகிறது. மக்களுக்கு விரோதமான ஒன்றிய அரசின் இத்தகைய நடவடிக்கையை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒரு பக்கம் முருகன் மாநாடு என்று நடத்தி கொண்டு மறுபக்கம் முருகன் கோவிலான பழனியை அழிக்க நினைக்கும் ஒன்றிய அரசின் தமிழர் விரோத அரசியலை ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டோம். அதே போல கொடைக்கானல் மலையில் है नहीं क्या? माननीय सदस्य श्री मनीष जायसवाल जी, माननीय सदस्य श्री अरुण गोविल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सरकार सार्वजनिक हित में संपत्तियों का निर्माण करती है, लेकिन कई बार उनका उपयोग ही नहीं होता। मेरे लोकसभा क्षेत्र मेरठ के महानगर में शास्त्री नगर में स्थित एल ब्लॉक में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सन 1988 में अपने कर्मचारियों के लिए 62 मकान बनाए थे, जिन्हें कर्मचारियों ने अस्वीकार कर दिया। आज ये मकान जर्जर हालत में है, छतों पर पेड़ उग गए हैं, खिड़कियां दरवाजे फिटिंग सब चोरी हो चुके हैं। हर एक मकान की कीमत लगभग 52 लाख रुपए है, जिससे कुल संपत्ति का मूल्य लगभग 32 करोड़ रुपए होता है। रात के समय ये भुता माहौल बना देते हैं और अपराधों का अड्डा बनते जा रहे हैं। इसी प्रकार डी ब्लॉक स्थित आवास विकास परिषद का कम्युनिटी सेंटर भी वर्षों से उपयोग में नहीं है और उसमें भी आपराधिक गतिविधियां होती रहती हैं। देश भर में ऐसी अनुपयोगी सरकारी संपत्तियां बड़ी संख्या में हैं। मेरा सुझाव है कि इन संपत्तियों को या तो एज इज वेयर इज बेसिस पर बेच दिया जाए या उन्हें मरम्मत कराकर रेंट पर दे दिया जाए या फिर समाज सेवी संस्थाओं यानी एनजीओज को सामाजिक कार्यों के लिए अलॉट कर दिया जाए। इससे संपत्तियां उपयोगी बनेंगी, सरकार को राजस्व मिलेगा और अपराध भी कम होते चले जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। माननीय सदस्य श्री काथिर आनंद जी। माननीय सदस्य श्री खरगेन मुर्मू जी। ये भी नहीं है। धन्यवाद मैडम। नहीं माननीय सभापति महोदया, আমি বিগত 6 বছর ধরে বারবার এই পবিত্র সদনে ভয়ঙ্কর বন্যা ও ভাঙন পরিস্থিতির বিষয়ে উল্লেখ করেছি। আজও পুনরায় আপনার সম্মুখে বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই। ভারী বৃষ্টিপাত এবং নদীর গভীরতা হ্রাসের কারণে গঙ্গা, ফুলোহার এবং কোশি নদীর জলস্তর বিপদসীমা প্রতি বছর অতিক্রম করে চলেছে, যার ফলে ভয়ঙ্কর বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আমার লোকসভা কেন্দ্রের রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দাটোলা বিলাইমালি গ্রাম পঞ্চায়েত, খাসমহল, নাসিরুদ্দিন টোলা, গঙ্গারাম টোলা, কান্তুটোলা, শ্রীকান্ত টোলা, মনিরাম টোলা, আমির চারটোলা, জিতুটোলা ইত্যাদি গ্রামের নদী তীরবর্তী জনবসতিগুলিতে বিধ্বংসী প্রভাবে 800টি পরিবারেরও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অন্যদিকে হরিশ্চন্দ্রপুর 2 ব্লকের উত্তর এবং দক্ষিণ ভাকুরিয়া, রশিদপুর গ্রামে 235টি পরিবারেরও অধিক ফুলোহার নদীর ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং দুর্ভাগ্যবশত গ্রামবাসীগণ তাদের বাস্তুচ্যুত হয়েছেন এবং 3টি নদীর তীব্র ভাঙনে সরকারি রাস্তার ধারে খোলা আকাশের নিচে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছেন। মহোদয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যথাযথ ত্রাণ এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করে বন্যা বিধ্বস্ত মানুষদের পুনর্বাসন দেওয়া হোক। माननीय सदस्य मनीष जायसवाल जी। एक सेकेंड। এই পরিস্থিতিতে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে আপনি অবিলম্বে গঙ্গা, ফুলোহার এবং কোশি নদীর তীরবর্তী বন্যা প্রবলিত এলাকার বিষয়টি কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী মাননীয় সি আর পাটিল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাথে আলোচনা করে বন্যা ও নদী ভাঙনের বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন এবং স্থায়ীভাবে। धन्यवाद। माइक आया नहीं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया। मैं आज आपके माध्यम से सदन को करोड़ों जो सहारा इंडिया के जो निवेशक हैं
मैडम, बहुत सारे गरीब लोग जो गरीब थे, किसान थे, मजदूर थे, उन्होंने छोटे छोटे रकम अपने सहारा इंडिया में इन्वेस्ट किए ताकि उनका जो है बचत के रूप में वो अपनी चीज़ों का इस्तेमाल कर सके। उनका शादी ब्याह, पढ़ना लिखना, घर द्वार बनाना सारा इससे जुड़ा हुआ था मैडम। लेकिन हम सब जानते हैं कि सहारा इंडिया का पैसा जो है वो रुक गया है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने कम से कम सहारा इंडिया के पैसे को जब्त किया और लोगों को ये आशा है कि उनको ये पैसा मिलेगा। मैडम, करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं, करोड़ों लोग हैं जो परेशान हैं और जो उनके एजेंट्स हैं, लाखों में एजेंट्स हैं सहारा के, जो अब भी लोगों को आसरा दे रहे हैं कि हम आपका पैसा दिलवाएंगे, और लोग उसमें जो है उनके एजेंट्स को परेशान कर रहे हैं। तो मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो लौटाने की प्रक्रिया सरकार लौटा रही है, लेकिन लौटाने की प्रक्रिया को थोड़ा तेज करे और लोगों को राहत दे। मैडम, यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। है नहीं क्या बेनी बहनन जी। माननीय सदस्य श्री जनार्दन सीगरीवाल जी। ये भी नहीं है। माननीय सभापति महोदया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक अति महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने की इजाज़त दिया है। मेरे लोकसभा महाराजगंज बिहार अंतर्गत सारण जिला के मांझी प्रखंड में एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल मांझी गढ़ है, जो सरजू घाघरा नदी के किनारे अवस्थित है। यह गढ़ बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, क्योंकि यहाँ 13वीं सदी के प्रतापी राजा वीर मक्कर मांझी के किले का अवशेष देखने के लिए आज भी देश के कोने कोने से लोग बड़ी संख्या में आते हैं। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद की सीमा से भी लगता है। महोदय, ऐसे ऐतिहासिक स्थल को पर्यटक की दृष्टि से विकसित करने की अति आवश्यकता है। इसलिए मांझी गढ़ से अटल राम घाट मांझी तक, अटल राम घाट मांझी महोदया, मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अटल जी के अस्थि अवशेष के कुछ अंश उस राम घाट पर भी विसर्जित हुए थे, या इसलिए और भी वह घाट अति प्रसिद्ध हो गया है। राम घाट मांझी पर सरजू नदी के किनारे रिवर फ्रंट बनाकर बिहार का एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल विकसित किया जा सकता है। मेरा जल शक्ति मंत्री से, धन्यवाद, पर्यटक मंत्री से यह अनुरोध है कि मेरे संसद लास्ट वन धन्यवाद स्पीकर मॅडम। मी आपलं लक्ष प्राईम मिनिस्टर आवास योजना जी महाराष्ट्रात लागू आहे त्याकडे करू इच्छित आहे। माझ्याच मतदारसंघात नाही पण पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या मोठ्या याद्या येतात आणि त्याच्यामध्ये लोकांना घरकुल मिळालं आहे अशी मंजुरी त्या ठिकाणी मिळत असते। पण अस्तित्वात बघितलं तर त्या गावाकडे किंवा त्या ग्रामपंचायतकडे किंवा त्या गावात गावठाण जमीन नसल्यामुळे त्यांना घरं मिळू शकत नाहीत। पण यादीमध्ये असं येतं की तुम्हाला प्राईम मिनिस्टर आवास योजना घरकुल मंजूर झालंय। मे 30च्या आधी सगळ्या कलेक्टर्सना आदेश दिला होता सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून की तुम्ही त्या गावातली जमीन अक्वायर करा आणि ह्या लोकांना तुम्ही जमिनी द्या। जरी गावठाण जमिनी नसल्या तरी गायरान जमिनीवर तुम्ही त्यांना घर बांधून द्यायची परवानगी द्या। अजूनही ती प्रक्रिया पूर्ण महाराष्ट्रात सुरू झाली नाही आहे। अनेक लोक ज्यांची यादी घरकुलमध्ये ज्यांची नावं घरकुल यादीत मंजूर होऊन आली आहेत ते घरांपासून वंचित आहे। प्राईम मिनिस्टर आवास योजना ही फक्त कागदावर आहे, ही अस्तित्वात नहीं है। आणि अध्यक्ष महोदय, मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि माननीय कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है कि जो भी घर गांव की ऐसी जमीन पे है जो गायरान भी नहीं है, गावठान भी नहीं है, वो निकालने चाहिए। या इसका मतलब क्या ये है कि 50 सालों से जो लोग वहाँ पे रह रहे, क्या आप उनको अतिक्रमण में घोषित करके, क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे स्टे लाने वाली है? Thank you, Madam. Giving me permission, I would like to draw the attention of this House of an unfortunate crash of Air India 171 and claim the lives of over 240 persons. I had a very much emotions with this incident because I lost my daughter-in-law, niece, Aparna Mhadik, who was the head of this cabin crew. The purpose to highlight the safety and the compliance measures that are needed, and the compensation is to be provided to the families of the victims.
only 90 families have been given the compensation, yet another families are yet left. India has had a strong safety record by international standards, ranking 55 out of 187 in ranking by the International Civil Aviation Organization. However, safety concerns still remain. At the international level, the aircraft manufacturer Boeing faces scrutiny, specifically for its 737 MAX and 787 Dreamliner aircraft. 787 Dreamliner was involved in the said crash. Domestically, there are high levels of vacancies in the Director General of Civil Aviation, Bureau of Civil Aviation, Airport Authority of India, and also air traffic controls. There is also need to be infrastructure and institution for technical training and aviation professional. Thank you very much. मेरे संसदीय क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में बटेश्वर गांव है, जो भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का पैतृक गांव है। सभापति महोदय, बटेश्वर गांव में ब्रह्मलाल महाराज जी का मंदिर है, जो तीर्थों के भांजे कहलाते हैं। 108 मंदिरों की श्रृंखला है। बटेश्वर को पर्यटन नगरी के रूप में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार विकसित भी कर रही है। बटेश्वर में एक हॉल्ट है रेलवे का, लेकिन अभी तक वो हॉल्ट रेलवे स्टेशन नहीं बन पाया है। संयोग से आज रेल मंत्री जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन करूंगा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म स्थान बटेश्वर में रेलवे हॉल्ट के स्थान पर रेलवे स्टेशन बनाया जाए, जिससे पूर्ण सुविधाएं रेलवे स्टेशन को मिले और देश भर के पर्यटक बटेश्वर में आए। वहाँ यमुना नदी भी है, ब्रह्मलाल महाराज जी भी है और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का गांव भी है। तो ये मेरा आपसे, आपके द्वारा अश्विनी वैष्णव साहब भी यहाँ संयोग से बैठे हैं, मेरी बात को शायद गौर से उन्होंने आज देखा भी है, ध्यान भी दिया है। तो रेलवे स्टेशन बनवा दिए साहब, ये माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक श्रद्धांजलि भी होगी। धन्यवाद। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू में साका। मैडम, ये देश और दुनिया के इतिहास में एकलौता एक ऐसा साका होगा जहां किसी एक धर्म के गुरु ने किसी और धर्म की रक्षा करने के लिए अपना शीस बलिदान किया। धन धन गुरु तेग बहादुर साहब, सिखों के 9वें गुरु ने कश्मीरी पंडितों के, जब उनके ऊपर मुगल के साथ उनके धर्म परिवर्तन के लिए जोर जबर दिया जा रहा था, तो इधर लाल किले से हुक्म हुआ और गुरु साहब चल के दिल्ली आए और लाल किले के सामने शीश गंज साहब ने उन्होंने अपने शीश का बलिदान दिया तिलक जंजू के राखा के वास्ते, जिस करके उनको हिंद की चादर का खिताब दिया गया है। मैडम, आज मैं इस सरकार से पूछना चाहूंगी कि जिन्होंने आपके तिलक जंजू की राखा करके आपके धर्म को जिंदा रखा, 24 नवंबर को हमारे सिखों ने मांग रखी है एसजीपीसी ने कि 24 नवंबर को मार्टरडम डे के नाम से सम्मानित किया जाए, कि गुरु तेग बहादुर की महान शहादत को सम्मानित किया जाए और इसको नेशनली मार्टरडम डे का एक छुट्टी दी जाए। मैं सरकार से ये मांग रखती हूँ कि क्या इसको आप स्वीकार करेंगे। और मैडम, 550 साल गुरु नानक देव जी के अवतार दिहाड़े में आपने हमारे बंदी सिखों की रिहाई के लिए नोटिफिकेशन निकाला था, जो आज तक 2019 से पूरा नहीं हुआ है। क्या वो वादा भी आप सिखों के गुरुओं के प्रति पूरा करेंगे? धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद चेयरमैन मैडम। दिस इज रिगार्डिंग बीएसएनएल फ्लाइट। आज प्रश्न के काल में 149 नंबर के प्रश्न पर बीएसएनएल की हालत के बारे में पूछा था, तो जो 4G टावर के बारे में पूछा था उन्होंने लिखित में दिया है कि पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के खासकर के लिए एक भी जिले में बीएसएनएल के और एमटीएल के टावर नहीं है। कुछ जिलों में बीएसएनएल के टावर है, बाकी कहीं टावर नहीं है। आज ये बताने की जरूरत यह है मैडम कि हमने बार बार कहा कि एमटीएल बीएसएनएल के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं, बार बार बताते रहे हम इतना काम कर रहे हैं। पिछले सालों में जो बजट एलोकेशन हुआ वो है, कैबिनेट जो एलोकेशन हुआ तो वो था 3,29,364 करोड़ 2019 में। बाद में 1,62,147 करोड़, फिर आ गया 72,028 करोड़ इज प्रोवाइडेड फॉर करंट ईयर 24-25। इतना प्रोविजन होने के बावजूद ये जवाब देते हैं कि सब जगह 99% पे 4G सर्विस शुरू हुई है।
धन्यवाद। मैडम पूरी तो कर, मांग ही नहीं पूरी हुई ना। करिए 5 मिनट तक अनुराग ठाकुर बोलता रहा, और इतना ये सब इतने प्रोविजन होने के बाद एक मिनट ये इतना प्रोविजन करने के बाद में आज भी टावर्स नहीं है, आज भी एमटीएल बीएसएनएल की सर्विस नहीं है। अब आगे सीएजी का रिपोर्ट बताता हूँ, उसमें 4 सेंटेंस मुझे पढ़ने दीजिएगा। What CAG report says, 3 sentences are there, madam. They should come on record. CAG says that it has given a report number 1 of 2025 has given the following observation: these non-adherence to the contractual terms and conditions, lack of due diligence, non-billing and deficient planning on part of BSNL and ITI, PSU under DOT, which resulted in loss of 1,944.92 crores, non-billing to Messrs. Reliance Jio Infogram Limited. This is very serious observation of the CAG, and that is why I demand that the government must take. मैडम भाई से क्या कर रही हो आप? BSNL MTL बर्बाद हो रहा है, आप तो हमें सर्विस देती हो BSNL की, तो चलता है क्या मुंबई दिल्ली में? वो share has gone from 12 to 3% now. The share in the market has gone to 3%, and we would like to request to the government. One is CAC inquiry, second is the improvement of. माननीय सदस्य श्री जगदम्बा पाल जी। सर अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ जो एक अत्यंत लोक महत्व के विषय को, जो महाराष्ट्र से भी जुड़ा हुआ है, वहाँ पे भी छठ का पर्व मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 6 करोड़ लोग आज भी भोजपुरी भाषा भारत में बोलते हैं, और सूरीनाम, ट्रिनिडाद, गुयाना, मॉरिशस, कहीं पे सेकंड लैंग्वेज है, मॉरिशस में, नेपाल में चलती है वो। तो आज राष्ट्रीय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भोजपुरी भाषा बोलने वालों, और आज भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इस सदन में कई बार आश्वासन भी आ चुका है। तो आज जो करोड़ों भारत में और भारत के बाहर रहने वाले जो भोजपुरी भाषा बोलते हैं, उसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि इस पर निश्चित तौर से उन करोड़ों भावनाओं को पूरा करने के लिए भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बेनी